Hello students, myself Amit Thakur, and first of all, as all of us knows that uh, uh, the Vidya publication has launched the Maxx marks, as you can just see over here, and Maxx mark is basically just Vidya publication has launched, or because of that all the student could score maximum marks, right? And basically all of us knows that what is the main secret of all the students, how to get the good marks, right? So in this particular sample paper and all the details that you will get over here you will get the different type of the problems with all the sections in this particular part, right? You can just get the main particular figure based problems, right? And you can get the different type of the numericals as so here we are going to discuss the very first chapter of the term 2 of your class 12th, right? The physics. So here we are discussing the EM waves, right? So electromagnetic waves. So let's start with that particular one. So here first of all let's go through the electromagnetic wave. सबसे पहले what the problem is there, ये EM waves है क्या, right? Everywhere that you are last 2 years that you are using your mobile, laptops, so to read out, to learning, to listening your favorite teachers, to your principal, right? So main problem is that ये सब चीज़ें जो आप लोग यूज़ कर रहे हो यहाँ पर चारों तरफ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, व्हाट इज द नीड फॉर दैट, एंड वी हैव डिस्कवर्ड दैट as in the term 1 part, right? In the term 1 part we have discussed that what is the electromagnetic induction, and basically the electromagnetic induction, that was the topic that you have studied in the term 1, right? वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कैसे मैं मैग्नेट के मोशन से, राइट, हाउ विद द मोशन ऑफ द मैग्नेट आई कैन, राइट, हाउ विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट आई कैन इंड्यूस द करंट. जस्ट टेक अ लुक. मैंने सबसे पहले यहां पर देखेगा here what we have, listen, let us suppose I have this particular, yeah, so here what we have, let's start with this particular one. So let's just review about the term 1, the electromagnetic induction. उसके बाद हम लोग EM waves पे जाएंगे. इनिशियली मैं आपको EM waves नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा, बिकॉज few student knows about the electromagnetic waves and some of the student don't know basically how we can understand it, what the basic need, और इसको कैसे जनरेट होता है, कहाँ से होता है, समझने की कोशिश कीजिए. लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइल है, एज ऑल ऑफ अस नोज दैट, एंड वी यूज टू मूव अ पर्टिकुलर मैग्नेट, राइट? जस्ट टेक अ लुक. मेरे पास यहाँ पर एक ही बेटा, देयर इज अ बार मैग्नेट, right? We have a bar magnet. So here you know that if we will try to move this particular bar magnet toward this particular coil, this is a coil. So what we have learned that, sir, if I will move it toward this particular coil, let us suppose you can just see this particular pointer and I'm just trying to move it with this particular coil toward this particular coil, what will it happen? What will it happen bit over here? समझने की कोशिश कीजिएगा. यहां पर करंट इंड्यूस होगा और वो करंट इंड्यूस होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ऑल्सो कॉल इट द काउंटर क्लॉकवाइज, राइट? यू कैन ऑल्सो कॉल इट द काउंटर एंटी क्लॉकवाइज और द काउंटर क्लॉकवाइज. अब यहां पर ये हुआ तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सर EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. अब यहां से ध्यान से सुनते रहिएगा जरा, यहां पर आप लोगों का EM वेव सब आने वाला है, राइट? जस्ट से दिस, यहां पर मैंने आप लोगों से कहा, सो हेयर यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज द फ्लक्स, राइट? सर we have the two particular flux, one is the electric flux, another is the magnetic flux. So here which type of the flux here we have, this is the magnetic flux, sir. So how the flux is changing over here, beta? If I will try to change, if I will try to move this particular bar magnet toward this coil, the number of magnetic field
लाइंस एंटरिंग इनटू दिस कॉइल विल गेट इंक्रीज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होती है, वी नो दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी इजी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट? So A is the area of this particular coil. Here whatever we have, and B is the magnetic field. So here, sir, magnetic field is changing. If I will try to moving this particular north pole toward the coil, then magnetic field is changing. और magnetic field अगर change होगा तो यहाँ पर flux भी मेरा change होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर flux change होता है with respect to the time, if the field changes with respect to the time, then EMF will get induced, right? Then EMF will get induced. अब यहां पर ये EMF induce हो गया, EMF induce हो गया, तो इसका मतलब EMF का मतलब क्या है? EMF basically a voltage, और अगर वोल्टेज मेरे पास आ चुका है तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर सर करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। That's why यहां पर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, राइट? इट इज वेरी इजी। सो देयर वाज अ वे। तो ये मुझे किसने बताया था? Who told me that? ये मुझे बताया था सर, ये बताया था मुझे फैराडे सर ने। That's why we used to call it the, what we used to call? We used to call it the electromagnetic induction given by the Faraday, right? तो यहां पर मुझे ये पता चल गया कि सर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराकर मेरे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से मेरे पास यहां पर क्या करंट मेरा इंड्यूस हो चुका है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करता हूं तो मेरे पास करंट इंड्यूस हो जाता है। दैट सिंपल। अब समझते रहिएगा, यहां पर जो मेरे पास ये करंट है, रिमेंबर दैट मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस हुई है। नाउ लेट्स गो बैक, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट द ईएम वेव्स, राइट? अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा व्हाट वी हैव हियर। यू कैन जस्ट सी दिस, द वेरी फर्स्ट पार्ट, नीड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। हियर यू कैन जस्ट रीड आउट सम पर्टिकुलर पॉइंट। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये कैसे हुआ? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, टर्म 1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ दैट वाज गिवन बाय द एम्पियर। उन्होंने ये कहा कि सर अगर मैं, देखिएगा मेरे पास एक वायर है, ठीक है, मेरे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर मैं करंट फ्लो कराता हूं, राइट? तो उन्होंने ये कहा इसके चारों तरफ, ऑल अराउंड दैट, राइट? अगर मैं एक फिक्स रेडियस से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं ऑल अराउंड, एंड आई यूज्ड टू जस्ट कवर द कंप्लीट लूप। तो उन्होंने ये कहा कि सर व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट हियर व्हाट वी हैव, दिस इज द व्हाट वी हैव, यू कैन जस्ट चेक द लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर वायर, जिसको मैं पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप के अंदर मैंने इसको एनक्लोज किया हुआ है। ये मेरे पास एक वायर है, इट्स अ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इसके अंदर करंट फ्लो होता है, चलो ठीक है करंट फ्लो करा दे, तो उन्होंने ये कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप। रिमेंबर दैट, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसी को आपको याद रखना है, इससे आसान कुछ नहीं होगा, जस्ट टेक इट। अब जरा देखिए, मैंने आपसे कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप, राइट, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड इन दैट। लेकिन सर एम्पियर्स लॉ तो मेरे पास ये था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर वायर। इस करंट को कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भाई दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, ये मुझे पता है, राइट? सो अगर मेरे पास एक कंडक्शन करंट है तो नीड फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आ गया सर? ये तो मेरे पास कंडक्शन करंट था। समझिए, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो इनकंसिस्टेंसी थी, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्पियर्स लॉ फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, राइट, द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वाज फाउंड इनकंसिस्टेंट। और ये किसने पकड़ा पॉइंट? ये पॉइंट पकड़ा द फेमस साइंटिस्ट द मैक्सवेल, राइट? ये पॉइंट पकड़ा मैक्सवेल ने कि भाई यहां पर जो है एम्पियर्स ने कहा हुआ है कि यहां पर पर्टिकुलर केवल
क्या है मेरे पास, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कैपेसिटर को चार्ज करता हूं तो वहां पर मेरे पास केवल कंडक्शन करंट होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी आता है। अब उन्होंने इस पॉइंट को कैसे डिफाइन किया, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए कि केवल डिस्प्लेसमेंट करंट जो है मेरे पास, राइट, व्हाट एवर द डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कैसे जनरेट हुआ। तो कैसे हुआ, एम्पियर्स लॉ जो गिवन था, जो एम्पियर्स ने दिया था, उसमें प्रॉब्लम था, दैट वाज इनकंसिस्टेंट। तो उसको मॉडिफाई किसने किया, किसने किया, मैक्सवेल ने, जिसको आगे जाकर क्या बोला गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किए, अब वो समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी दिस हियर। ये तो मैंने अभी आपको क्या किया, वी हैव जस्ट इंड्यूस्ड द करंट विद द हेल्प ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हियर। इसको इरेज करते हैं। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, मुझे अब यहां पर जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कहां से आई है वो देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। या यहां पर मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सर्किट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू चार्जिंग अ कैपेसिटर। वी ऑल नोज दैट, टर्म 1 में पढ़ चुके हैं आप लोग। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, राइट बेटा, इट्स अ कैपेसिटर एंड वी नो दैट, सर ये क्या है मेरे पास, इट्स अ एसी सप्लाई। ये मेरे पास एक एसी सप्लाई है, चेंजिंग विद द टाइम, इट्स अ एसी मेन सप्लाई। तो यू नो दैट दैट मस्ट बी द प्लस वी, इट मस्ट बी द माइनस वी। और इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखता हूं, v इक्वल टू, हाउ कैन आई राइट दैट, आई कैन राइट इट जस्ट लाइक हाउ, जरा समझिएगा, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं और आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर साइनोसॉइडल वोल्टेज। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो मेंशन द वैल्यू फॉर द साइनोसॉइडल करंट। तो देखिएगा सर क्या होता है यहां पर, सर अगर यहां पर करंट फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, दिस साइकिल आई हैव अप्लाइड ओवर हियर, दिस इज द एसी मेन सप्लाई, राइट, आई अप्लाइड द एसी ओवर हियर। Here, sir, the positive charge will get collect over here and the negative charge will be induced over there. One side is positive, another side is negative, we know that very well. Clear? तो यहां पर क्या हुआ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, ओके सर, आई करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर, सर यहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स ओके। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसके अंदर एयर है, राइट। तो उन्होंने, मैक्सवेल ने ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट करंट की जनरेशन क्यों हुआ, क्या उसकी नीड थी, और उन्होंने कैसे अपने पॉइंट को वेरीफाई करा। अभी तक हम ये जानते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कराता हूं तो फ्लक्स में चेंज आता है, तो फ्लक्स चेंज होने से मेरे पास क्या होता है, द करंट विल गेट इंड्यूस इन अ कॉइल। तो दैट मीन्स सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट इंड्यूस, और ये मेरे पास प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा, समझिएगा। यहां पर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा। वी ऑलवेज नो दैट व्हाट द कंपास नीडल, वेयर देयर वुड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल गेट शो द डिफ्लेक्शन, राइट। तो मेरे पास यहां पर ये मैग्नेटिक, राइट, आई हैव दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक निडल, समझ लें आप लोग इसको, बार निडल। यहां पर उन्होंने इसको रखा मैग्नेटिक बार निडल को, और ये डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, 100% श्योर, व्हेन देयर इज अ करंट देयर विल डेफिनेटली देयर विल द मैग्नेटिक फील्ड। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यहां पर बार इसको मैग्नेटिक निडल को यहां पर रखा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये भी कंफर्म हो गया सर यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, नो प्रॉब्लम इज देयर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग, देयर इज अ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो देयर, बट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर भी हेयर आल्सो इट इज केप्ट द मैग्नेटिक बार। तो उन्होंने यहां पर भी डिफ्लेक्शन देखा, तो उन्होंने ये देखा कि सर यहां पर तो कुछ भी नहीं है, देयर इज अ एयर एंड द नो करंट इज देयर। तो अगर यहां पर करंट नहीं है तो सर यहां पर डिफ्लेक्शंस
यहां पर ये जो डिफ्लेक्शंस हैं मैग्नेटिक बार नीडल के, ये कैसे आ गए, राइट? ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने ये कहा नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। 100% यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विदाउट करंट, राइट, वो विदाउट करंट पॉसिबल नहीं है। विदाउट करंट इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई एम्पियर्स ने जो हमें पॉइंट सिखाया कि अगर वायर के चारों तरफ अगर मैं लूप फ्रेम करता हूं और वहां पर मैं ये वाला पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उनका बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू कंडक्शन करंट, जो कि कंडक्शन करंट कौन सी है मेरे पास, ये वाली, तो इसका मतलब ये गलत हो गई। दैट वॉज प्योरली इनकंसिस्टेंट। तो उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, अब वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपरली दोबारा से ये बताता हूं, देखिएगा जरा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर बाद में मैक्सवेल ने कहा नहीं, दिस इज इनकंसिस्टेंट, और यहां पर मेरे पास एक करंट एग्जिस्ट करेगा जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस करंट को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको नाम दिया दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उन्होंने इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों कहा, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये तो है मेरे पास कंडक्शन करंट, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट, इसके अंदर आपको एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी जोड़ना होगा। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये आपने कह तो दिया कि सर यहां पर केवल एक बार मैग्नेट के डिफ्लेक्शन की वजह से आप ये कैसे कह सकते हैं, देयर वुड द डिस्प्लेसमेंट करंट, यस इट इज पॉसिबल। अब जरा समझिएगा द वेरी बेसिक पॉइंट, yes just try to understand that, say this। अभी मैंने यहां पर पर्टिकुलर ये एक कैपेसिटर फ्रेम किया, दिस इज द एसी सोर्स आई हैव अप्लाइड, राइट, जो कि लास्ट 10 मिनट्स में आप समझ चुके हैं, राइट, दिस इज वन। वी नो दैट सर अगर मेरे पास ये पॉजिटिव साइकिल आता है, राइट, अगर मेरे पास ये वाला पॉजिटिव साइकिल आता है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल गेट हैपन ओवर देयर, जस्ट सी दिस, सर कंटिन्यूसली यहां पर मेरे पास ये वैल्यू चेंज होता जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एंड अगेन इट इज डिक्रीजिंग, राइट, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ओके। सो हेयर सर यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो 110% सर देयर वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहां पर अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो भी वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो 100% दिस इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो समझ में आता है। इसके बाद क्या होता है, सर ओनली द पॉजिटिव साइकिल विल नॉट बी देयर, डेफिनेटली देयर विल बी द नेगेटिव साइकिल आल्सो। लेट्स टेक दिस नेगेटिव साइकिल एंड अप्लाई इट ओवर हियर। अब मैं नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर देता हूं, तो पॉजिटिव साइकिल मैंने अप्लाई किया और मैंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग आल्सो। नाउ अब यहां पर मेरे पास ये पर्टिकुलर कंटिन्यूसली नेगेटिव में डिक्रीज, अगेन इट्स गोइंग टू जीरो, तो सर यहां पे ऐसा क्या होगा, डेफिनेटली देखिए मैं इस फिगर को और गंदा नहीं करना चाह रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये कैपेसिटर है, राइट, यहां पर जब सर नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, सो व्हाट विल गेट हैपन, सर यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, देखिए, सो इट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज चेंजिंग। तो यहां पर भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे वेरिएबल मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चेंज होता है तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब क्या था, ये तो बताया था मुझे किसने, एम्पियर्स ने, कि भाई इफ आई विल जस्ट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट इंड्यूस। लेकिन मैक्सवेल ने अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है देन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहां जो ये करंट होगी इस कैपेसिटर के बीच में, वो कंडक्शन करंट नहीं होगा, दैट वुड बी द पर्टिकुलर
displacement current, right? So here would be the displacement current. So इसका मतलब ये हुआ displacement current जो अब आज के बाद आप लोग याद रखेंगे वो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? It has been produced because of change in electric field. और इस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव किया, right? So now let's get move forward, right? We have done that. This is also done. Now अब यहां पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैंने आपसे कहा कि आपके चारों तरफ क्या, आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, सभी जगह से पर्टिकुलर ईएम वेव्स का पर्टिकुलर प्रोडक्शन होता रहता है एंड ये रियली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर देखिएगा, और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द, कैसे प्रोड्यूस होती है भाई? ये प्रोड्यूस होती है मेरे पास एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड चार्ज और एलसी सर्किट. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एलसी सर्किट बता देता हूँ. टर्म 1 में आप लोग पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि व्हाट इज द एलसी सर्किट एंड ऑल. देखिएगा एलसी सर्किट क्या है. मेरे पास एक पर्टिकुलर ये इंडक्टर, अनदर दैट आई हैव अ कैपेसिटर, राइट? व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, यहां पर मैं एसी साइकिल अप्लाई कर देता हूं, राइट? तो टर्म 1 में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था एसी में, जो एसी चैप्टर है हमारे पास, द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ द टर्म 1, और उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो व्हाट्स ओवर देयर, यहां पर मैंने एसी साइकिल अप्लाई किया बेटा, तो क्या होता है, इसके लिए मेरे पास पर्टिकुलर, इसका मेरे पास रिएक्टेंस कितना होता है, एक्सएल, इसका कितना होता है, एक्सी, एंड आई नो दैट when both of these two reactants will be equal to each other, then what will be the condition over there? XL must be equal to XC. XL must be equal to XC. So इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो. F is equal to 1/2 pi अंडर रूट LC. यही कुछ और नहीं, यही मेरे पास टैंक सर्किट के फ्रीक्वेंसी होती है. इसका मतलब ये है टैंक सर्किट, और ये जो मेरे पास पर्टिकुलर LC सर्किट, एक्चुअली LC सर्किट को वी कैन ऑल्सो यूज टू कॉल द टैंक सर्किट ऑल्सो, राइट? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इट इज प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव, और इसकी वजह से मेरे पास क्या बनता है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है. तो ईएम वेव्स का जो जनरेशन है, वो जो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, राइट, वो यहां से प्रोड्यूस होता है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड. अब मेन पॉइंट पर आते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा. कहीं पर भी, एवरीवेयर, अगर आपके पास ईएम वेव्स हैं, राइट, कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, कैमरा से या मोबाइल से, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए सर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे यूज टू ट्रैवल इन द स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट, एज वी नो दैट, राइट. अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल होती हैं. सर कैसे न्यूट्रल होती है, वो समझने की कोशिश करते हैं. नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड नॉट विद द मैग्नेटिक फील्ड. हाउ, समझने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे कंटेन्स, दे कंसिस्ट ऑफ, दे यूज टू कंसिस्ट ऑफ, जस्ट टेक अ लुक. मेरे पास यहां पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और ये दूसरा मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है, राइट? One is the electric field component, another is the magnetic field component. Both of these two components will be perpendicular to each other. One electric field, another magnetic field. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड अवेलेबल हैं, उनके पर्टिकुलर किससे, कॉम्बिनेशन से वेव प्रोड्यूस होगा. और वो किस में होगा, मान लीजिए अगर मेरे पास x में पर्टिकुलर, x में मैग्नेटिक फील्ड अगर है और y में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, जो ऐसे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कैमरे से प्रोड्यूस होता है, मोबाइल से प्रोड्यूस होता है, लैपटॉप से प्रोड्यूस होता है, उसकी स्पीड c होती है. और वो जैसे मैंने भी बताया कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है. कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. इसका मतलब वो भी इसके 90 डिग्री पर होगा. इसका मतलब जो वेव ट्रेवल करेंगी वो भी 90 डिग्री पर होगी. इसका मतलब एक डायरेक्शन में अगर मेरे पास x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एज मेंशन द स्लाइड, और मेरे पास दूसरी डायरेक्शन में यानी y साइड में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, तो z डायरेक्शन में मेरे पास वेव का ट्रांसमिशन होगा.
राइट। और ऐसा नहीं है कि सर अगर मान लीजिए अब कुछ लोगों के दिमाग में ही आता है कि सर ये क्या मैंडेटरी है कि यहाँ यहीं पर मैं एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और इसी डायरेक्शन में मेरे पास ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बेटा, माइनस एक्स में हो सकता है, माइनस वाई में हो सकता है, माइनस जेड में हो सकता है, बट हमेशा सभी वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी द not deflected with the any other electric field and the magnetic field also, that will be continuously in the motion, right? So the electromagnetic waves show the property of the reflection, refraction, interference and diffraction and the polarization. आपके घर में इतने सारे particular screens होती हैं, right? सभी से कहीं से reflection होगा, right? कहीं से particular refraction होगा, ये anyhow आपको हार्म जरूर करेंगी, राइट ये आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा, और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि हम नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। सो हेयर अब यहाँ पर देखिए वन मोर पॉइंट दैट वी कैन डिस्कस ओवर हियर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन द सेम फेज, राइट। Depending on that you can also get a problem over that, it is also very important, we will discuss through the प्रॉब्लम। ये यहाँ से आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता व्हाट इज एग्जैक्टली द फेज इज, राइट, इसको हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे बेटा। सो नाउ हियर व्हाट वी हैव, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, द फ्री स्पेस इज कांस्टेंट, राइट। मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट भी है, और उनको दोनों का जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड क्या होती है सर, उसकी स्पीड होती है मेरे पास c, ये देखिए, राइट सर, ये तो इट इज़ वेरी इजी, ये तो फॉर्मूला तो हमें याद है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन निकालने में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन निकालने में। तो इसका डायरेक्शन निकालने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज c, जो मेरे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द E क्रॉस B, राइट, E क्रॉस B। तो मेरे पास जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके डायरेक्शन आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यू नो दैट सर I, as we can consider over here, you can just see this, जरा देखिएगा, here sir I क्रॉस J इज इक्वल टू K। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, I का मतलब X में, और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, J का मतलब Y में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में होगी, इजी सर, दैट वुड बी इन द Z डायरेक्शन। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। सो हेयर बहुत सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ से पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है एंड द वेरी वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये वेव का जो आपका पार्ट है यहाँ से 2-3 पार्ट मार्क का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो हेयर फॉर द नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, द ट्रांसवर्स नेचर। यहाँ पर ये ट्रांसवर्स नेचर आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, राइट, आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं रीड आउट किया। तो ट्रांसवर्स नेचर देख लेते हैं, व्हाट द ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर मैंने आपसे ये कहा, यस हियर this is the electric field wave and this is the magnetic field wave, right, you can understand that, clear। so yahan par here clear, so you can just consider it, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं ये मेरे पास परपेंडिकुलर मोशन में है, और जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है वो भी परपेंडिकुलरली मोशन में है। सो एक मेरे पास x में मूव कर रहा है, अनदर दैट इज मूविंग इन द y, राइट। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट, अगर मैं इस तरीके से देखिए, अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मेरे पास y डायरेक्शन में, दिस इज द y में अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और यहां से इसके परपेंडिकुलर दिस इज द डायरेक्शन, y के परपेंडिकुलर हाउ मच इट शुड बी, लेट अस सपोज इट्स द z, राइट, इट इज मूविंग अलोंग द z, then the resultant wave will get moved or the electromagnetic wave will produce in the z direction, right। So
यही ट्रांसफर नेचर कहलाता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड और जो इसकी रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसको मैं क्या बोल देता हूं, ईएम वेव, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स basically deals with the perpendicular, right? So depending on that you can find out all of these points. So here we mentioned that sir EBK form to right-handed set. Right-handed set is like that, right? एक अगर डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, so easily you can determine the direction of electromagnetic wave. Clear हुआ? So it is very very easy. So here the rest of the part we will discuss in the next class. Okay बेटा? So जो भी इसका पर्टिकुलर जो पार्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर भी स्टॉप करते हैं. द फ्यू पर्टिकुलर पार्ट दैट हैज बीन लेफ्ट. ओके, थैंक यू.